वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ न्यू सीरीज जिसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर। उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी सो दैट क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो पैसेज है, मैं रीड कर देती हूँ। What can be the use of a poetry that has no true subject except the poet's own selfhood? The traditional use of poetry in the Western world has been instruction through delight, where teaching has meant the common truths or common deceptions of societal tradition, and where the aesthetic pleasure has meant a fulfillment of expectations founded upon past joys of the same design. But an individual psyche has its own accidents, which it needs to call truths, and its own necessity for self recognition, which requires the pleasures of originality, even if those pleasures depend upon a kind of lying against time and against the achievements of the past. The use of such poetry demands to be seen in a detailized way if it is to be seen more truly. So, this passage is taken from The Use of Poetry written by Harold Bloom. सबसे पहले बात करते हैं हैरोल्ड ब्लूम की। ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं। इनका जो लाइफ स्पैन रहा है वो है 1930 से लेके 2019 तक। ये जो पैसेज अभी हमने रीड किया ये है द यूज़ ऑफ पोइट्री। ये एक आर्टिकल था जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था। इस पैसेज के ज़रिए हैरोल्ड ब्लूम कहना चाहते हैं कि जो पोइट होता है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है जब अपनी पोइट्री लिखता है। यानी कि जो पोइट का जो कनेक्शन है वो सेल्फहुड से जुड़ा हुआ है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और उसकी फीलिंग्स को कौन पढ़ रहा है? रीडर्स जो पढ़ रहे हैं, और वो उसकी पोइट्री से कनेक्ट हो रहे हैं। लाइक उसकी जो पोइट्री पढ़ी जा रही है, रीडर क्या करे, अपने भी इमोशंस अंदर के उस पोइट्री से कनेक्ट कर लेते हैं और उन इमोशंस से बह जाते हैं। एक अच्छा पोइट वही है जो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके और रीडर उसकी पोइट्री से कनेक्ट हो सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सॉन्ग्स का। आजकल के टाइम पे हम लोग जो सॉन्ग सुनते हैं वो अपने मूड के हिसाब से सुनते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा मूड ऑफ है हमारा तो हम सैड सॉन्ग्स लगा लेते हैं, फिर उसकी लिरिक्स में बह जाते हैं। इसी तरह से पोइट्री भी वर्क करती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच इज क्लोजेस्ट टू बीइंग ट्रू? ऑप्शंस आर देयर कैन बी नो यूज ऑफ पोइट्री, मैन मे बी द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री कैन हैव नो ट्रू सब्जेक्ट, the poet himself may be the subject. So the answer is the poet himself may be the subject. The second question is, if selfhood of a poet is the subject of poetry, then originality shall spring from creating ideal pleasures, reliving the past joys, some truths of untruths, truth of self-recognition. So the answer is some truth of untruths. Third question is, what is meant by traditional use of poetry? Promoting doubtful pleasure, promoting joyous expectations, promoting serious ideas, promoting social honesty in life. And the answer is promoting joyous expectations. अब देखते हैं सेकंड पैसेज। ये है G.M. हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया। No worst there is none. No worse there is none, no worse there is none. Pitched past, pitch of grief, more pangs will school at 4 pangs wilder ring. Comforter where is your comforting? Mary mother of us, where is your relief? My cries heave, hers long, huddle in a main a chief, woe, world sorrow, on an age-old anvil winds and sing. Then lull, then leave off, fury had shrieked, no lingering, let me be fell, force I must be grief. Oh, the mind has mountains, cliffs of fall, frightful sheer, no man fathomed, hold them cheap.
May who never hung there, nor does long or small, durance deal with that steep or deep. Here creep, wretch under a comfort serves in a whirlwind all, life that does not end and each day dies with sleep. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम नो वर्स्ट देयर इज नन। इस पोएम के टाइटल के अकॉर्डिंग जो सही स्टेटमेंट लग रहा है वो है नथिंग कैन बी सो मच बैड एज दिस। डी आंसर वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। Not all know the intensity or depth of suffering. Death does not put an end to our sufferings. Suffering is seen as winds that hinder comfort. Suffering's intensity or depth is in the mind. So the correct answer is 1 and 4 statement. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉट ऑल नो द इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ सफरिंग। किसी की भी सफरिंग का हमें एक ट्रू अंदाज़ा नहीं हो सकता है सिवाय खुद उसके। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट सफरिंग्स इंटेंसिटी और डेप्थ इज़ इन द माइंड। तो इसमें से स्टेटमेंट्स हमें चूज़ करनी थी। आंसर है ए 1 एंड 4 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैसेज से रिलेटेड। बियॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ नोन ग्रीफ देयर कैन बी ओनली द ट्विस्टेड नोन पेन्स। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये जो पैसेज है थॉमस हार्डी ने जो लिखा था टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स उससे लिया गया है। मैं एक बारी पढ़ देती हूँ इसे भी। जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स इन Aeschylean phrase had ended his sport with Tess, and the D'Urberville knights and dames slept on in their tombs unknowing. The two speechless gazers bent themselves down to the earth as if in prayer and remained thus a long time, absolutely motionless. The flag continued to wave silently. As soon as they had enough strength, they arose, joined hands again, and went on. ये स्टोरी अगर आप लोगों को याद होगी इसमें जो टेस है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड जो एंजल क्लेयर है उससे शादी हो जाती है टेस की। एंड इसमें जो एक और कैरेक्टर है एलेक वो इसमें एज एन एंटागनिस्ट दिखाया गया है जो कि टेस को हैरेस करता है और एट लास्ट टेस उसका मर्डर कर देती है जिसकी वजह से टेस को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है और इसी के साथ इसका एंड हो जाता है। जब उसको हैंग कर दिया जाता है तब जो जेल के बाहर है वहाँ पर उसका हस्बैंड एंजल क्लेयर और उसकी एक सिस्टर लीज़ा लू बाहर बहुत ही दुख के साथ खड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पोर्ट विद टेस एंड। उसका एंड कैसे हुआ था। आंसर इज शी वॉज हैंग्ड। ए आंसर वुड बी द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हु आर द टू स्पीचलेस गेजर्स। जो खामोशी से खड़े हुए थे वो दो लोग कौन थे। एंड द आंसर इज लीज़ा लू एंड एंजल क्लेयर। वो दोनों बाहर साइलेंटली खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ लाइन्स हैं जो कि टेम्पेस्ट से ली गई हैं शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट एंड उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ डायरेक्ट। दिस इनसब्सटेंशियल पेजेंट रिफर्स टू द आंसर इज अ नॉन रियल परफॉर्मेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड व्हाट आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन मीन्स। द करेक्ट आंसर इज देयर इज नो सब्सटेंस टू ह्यूमन लाइफ। एंड अब जाके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। 11th क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे व्हाट इज़न्ट लिटरेचर। द करेक्ट आंसर इज़ ए। अब 12 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। स्टेटमेंट 1 है इन वेटिंग फॉर गॉडॉट इट इज़ व्लादिमीर हु क्वेश्चंस द बॉय हु कम्स फ्रॉम गॉडॉट टुवर्ड द एंड ऑफ द 2 acts
And the second statement is, in Waiting for Godot, it is Estragon who says nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. So Waiting for Godot में क्या होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो हैं ये दो फ्रेंड हैं जो कि किसी का वेट कर रहे हैं एक जगह पे खड़े होकर। किसका वेट कर रहे हैं, गॉडॉट का। सो एक दिन वो वेट करते हैं। अब उस टाइम पे तो कोई फ़ोन नहीं होते थे कि बैठ रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं वेट कर रहे हैं किसी का, ऐसा कुछ नहीं था। कभी वो पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी एक कह रहा है कि मैं अपना ड्रीम सुनाता हूँ तुम्हें, तो दूसरा मना कर रहा है, कभी वहीं पे वेट करते करते सो जा रहे हैं। तो बस एक ऐसा ही ये प्ले है। इसमें दो कैरेक्टर और ऐड होते हैं, पोजो एंड लकी। सो अब हमें इन दोनों में से बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसमें जो कहा गया है व्लादिमीर है जो कि गॉडॉट की साइड से आने वाले मैसेंजर से क्वेश्चन करता है। यस, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड जो सेकंड है एस्ट्रागन है जो कहता है नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। सो लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। एंड ये जो था ये एक क्रिटिसिज्म का पार्ट है। टॉल्स्टॉय ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था क्रिटिकल ऐसे ऑन शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की काफ़ी बुराइयां करी थी। सो इसी के आंसर में जॉर्ज ऑरवेल ने एक ऐसे लिखा था लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की जो बुराइयां की गई थी उसको कवर अप किया था। और ये भी लिखा था कि टॉल्स्टॉय के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, डिसऑनेस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डायरेक्शंस आर फ्रॉम हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी। सो द स्टेटमेंट्स हैं, द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस ऑन अ सी साइड टाउन। नेक्स्ट है अ गार्बेज पेल ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू द पॉर्च स्टेप्स। थर्ड है अ लाइट शोज फ्रॉम अपस्टेयर्स बेडरूम लोअर फ्लोर विंडोज बीइंग डार्क। Fourth, he hangs the drum around his neck, taps it gently with the sticks, then marches round the table, beating it regularly. So the birthday party अगर आपने पढ़ा होगा उसमें दिखाते हैं लास्ट में क्या होता है ना, कुछ ड्रम का सीन होता है। उसमें बर्थडे पार्टी में एक ड्रम आता है जिसको स्टैनले मिस्टेकनली तोड़ भी देता है। दो हमें स्टेटमेंट इसमें से चूज करनी है, तो फोर्थ क्या है, फोर्थ सही है। एंड इनमें से फर्स्ट है द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस ऑन अ सी साइड टाउन। सो ये दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इसमें से आंसर है बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव बिलीव्ड दैट द पर्शियन गल्फ वॉर नेवर हैपेंड। इनमें से किस राइटर ने कहा था कि पर्शियन गल्फ वॉर जो है वो कभी नहीं हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जीन बॉड्रियार्ड। पर्शियन गल्फ वॉर वो है जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था एंड उसके बाद अमेरिका एंड जितने भी नेटो थे और नेटो कंट्रीज़ थी उन्होंने इराक के अगेंस्ट चले गए थे सब। तो ये जो राइटर हैं जीन है, इनका ये कहना था कि जो पर्शियन गल्फ वॉर है वो वॉर नहीं थी, क्योंकि वॉर वो होती है जहाँ पे दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे दो लोग नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ एक ही साइड से अटैक्स हो रहे थे। तो इसको एट्रोसिटी कहा जाएगा, वॉर नहीं कहा जाएगा। एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं 16। Which two of the following confirm to liberal humanist thought? So the statements are, literature transcends the limits of the age of its origin and it so is timeless. Second है, literature is untouched by the essential human nature which is unchanging. Third is, literature is devoid of any purpose to enhance life or promote human values. And fourth is, identity is a unique essence unaffected by environment and society. So इन statements में से जो दो सही हो सकती हैं वो हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट is, literature transcends the limits of the age of its origin and so is timeless. And the fourth is, identity is a unique essence unaffected by environment and society. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिकेंस कैरेक्टर अपीयर्स एज अ घोस्ट। इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस का जो कि एज अ घोस्ट अपीयर हुआ था। एंड ऑप्शंस दिए गए हैं और द करेक्ट आंसर इज जैकब मार्ले।
जैकब मार्ले का जो कैरेक्टर है वो क्रिसमस कैरोल में था, जिसमें एज अ घोस्ट अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें प्ले को मैच करना है उसके प्ले राइट से। सो फर्स्ट है कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। ये लिखा था टेनेसी विलियम्स ने। और अगर हम ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे ABCD में से, सो इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है बी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने लिखा था लाइफ ऑफ गैलीलियो इसके अकॉर्डिंग। एंड सी का 4 से मैच होगा, टेम्पटेशन लिखा था वैक्लेव हेवल ने। एंड डी है ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग मिस जूली। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है। एंड इसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर हमें एक भी प्ले राइट या प्ले या राइटर याद है, सो हमारे आंसर्स जो सही होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ऑथर और टेक्स्ट को हमें मैचिंग करनी है। मॉडर्निटी एट लार्ज, द टूरिस्ट केस, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, द ब्लैक जैकोबिन। सो बी का अगर हम देखें द टूरिस्ट केस, ये लिखा था J. Arrey ने। एंड इसके अगर हम इस तरह से मैच करें तो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंटरमीडियरीज। सो सी पियर बोर्डो इज द करेक्ट आंसर। पियर बोर्डो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस थे ये। इनका ये कहना था कि हर इंसान के पास 3 तरह की कैपिटल होती है। फर्स्ट है इकोनॉमिक कैपिटल, सेकेंड है कल्चरल कैपिटल एंड थर्ड है सिंबॉलिक कैपिटल। सो इकोनॉमिक कैपिटल में क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। एंड कल्चरल कैपिटल में क्या आ जाता है, नॉलेज रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉलेज रिलेटेड टू स्किल। हर किसी ना किसी के पास एक ऐसी स्किल होती है, लाइक अगर किसी के पास इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है या सिंबॉलिक कैपिटल जो कि पॉपुलैरिटी होती है, अगर इन तीनों में से 2 चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उसके पास कल्चरल कैपिटल है यानी कि नॉलेज है, तो वो नॉलेज के ज़रिए सब कुछ पा सकता है। नॉलेज या स्किल, इन दोनों के ज़रिए कोई भी इंसान सब कुछ पा सकता है अगर वो चाहे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए MS धोनी या फिर नेल्सन मंडेला का भी एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनकी थ्योरी को समझने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें से हमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है। एंड स्टेटमेंट 1 है लिंग्विस्ट्स being primarily interested in the scientific study of language approach language dispassionately. And second statement है linguists are necessarily polyglots who bring their own biases to language study. सो इसमें अगर देखा जाएगा, सो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। सो क्योंकि इसमें खुद के कोई भी बायसेस लिंग्विस्ट्स के नहीं देखे जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। सो इसका आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स इज एसोसिएटेड विथ जूलिया क्रिस्टीवा टर्म्स द सिमियोटिक। सो जूलिया क्रिस्टीवा एक बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसोफर थी। सो सिमियोटिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइन, कोई भी ऐसा साइन जिसके ज़रिए हमें एक मैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी है। ये रिलेट करती थी डिस्प्लेसमेंट, स्लिपेज एंड कंडेंसेशन। ये इन्होंने टर्म्स जो हैं सीमियोटिक की वो एसोसिएट की थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन राइटर एंड बुक को हमें मैच करना है। एंड राइटर्स हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, मुल्कराज आनंद, पंचकोरी खान एंड कमला सत्यनाथन। सो ये बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि सारे ही ये बहुत फेमस वर्क्स हैं। अनटचेबल, राजमोहन्स वाइफ, स्टोरीज फ्रॉम इंडियन क्रिश्चियन लाइफ एंड द रेवलेशंस ऑफ एन ऑर्डरली। सो अनटचेबल लिखा गया था मुल्कराज आनंद के द्वारा। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था राजमोहन्स वाइफ।
सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। ए का हमारा हो गया सेकंड, बी का हमारा हो गया 1 एंड थर्ड का हमारा हो गया 4 एंड डी का हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, आंसर हमारा है बी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉवेल्स बाय इयान मैक्यूहन। उन्होंने कौन से नॉवेल्स लिखे थे, हमें 2 नॉवेल्स बताने इनमें से। सो फर्स्ट है एटॉनमेंट एंड सेकंड अगर हम देखें, सेकंड है इनका द चाइल्ड इन टाइम। सो 1 एंड 3 आर करेक्ट आंसर्स। सो इसमें से है ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, फिर से हमें बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत हैं। सो द स्टेटमेंट 1 इज न्यू हिस्टोरिसिज्म stipulates that teleological connotations of history have to be skewed. Second statement is new historicism neither denies nor accepts totalizing explanations of historical events. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. So इसमें भी स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम। इन मिस्टर बैनेट एंड मिसेस ब्राउन, वर्जीनिया वुल्फ analyze the state of modern fiction by contrasting 2 generations of writers, criticizes book buying preferences of the educated English class. C है presents modernity as a stable and coherent project uniting all artists. And fourth is response to E.M. Foster's remark on character in fiction. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनालाइसिस द स्टेट ऑफ मॉडर्न फिक्शन बाय कंट्रास्टिंग 2 जनरेशंस ऑफ राइटर। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। अब हमें इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना होगा कि कब रिलीज हुआ था। दिस ब्रिज कॉल्ड माई बैक, सेक्शुअल पॉलिटिक्स, जेंडर ट्रबल, द फेमिनिन मिस्टेक। सो सबसे पहले देखेंगे हम द फेमिनिन मिस्टेक, ये 1963 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सेक्शुअल पॉलिटिक्स जो कि 1970 में पब्लिश हुआ था। एंड थर्ड है दिस ब्रिज कॉल्ड माई बैक, 1981 में पब्लिश हुआ था। एंड द लास्ट इज जेंडर ट्रबल, ये 1990 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था एंड सेकेंड एडिशन इसका 1999 में आया था। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बन रहा है हमारा डी, 4, 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच 2 वर्क्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर रिटन बाय एफ्रा बेन। एफ्रा बेन ने इनमें से कौन से 2 वर्क लिखे थे। सो ओरोनोकू लिखा था उन्होंने एंड सेकंड अगर हम देखेंगे इसमें रोवर लिखा था। सो 1 एंड 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स श्याम सल्वातोराइज नॉवल फनी बॉय। ये नॉवल कैसा नॉवल। सो कमिंग ऑफ एज नॉवल क्या होते हैं, कमिंग ऑफ एज नॉवल वो होते हैं जो फोकस करते हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, जिसमें हमें एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो बचपन से लेके बड़ा होता हुआ दिख रहा होता है, उसे कमिंग ऑफ एज नॉवल कहते हैं। नेक्स्ट है नॉवल ऑफ मैनर्स, नॉवल ऑफ मैनर्स कहते हैं जिसमें हमें सोशल कस्टम्स, मैनर्स और कन्वेंशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एम्मा जेन ऑस्टन ने जो एम्मा लिखा था ये हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉवल ऑफ मैनर्स का। नेक्स्ट है हमारा पिकरेस्क नॉवल। पिकरेस्क नॉवल क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ हमें एक एडवेंचर देखने को मिलता है एक प्रोटैगनिस्ट द्वारा। प्रोटैगनिस्ट जो है वो बहुत रोगिश होता है, मतलब कि शरारती बच्चे का एक हमें एडवेंचर देखने को मिलता है, यूजुअली फ्रॉम लो क्लास। सो एग्जाम्पल है द पिकविक पेपर इसका। नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल नॉवल। ये 18th सेंचुरी का एक लिटरेरी जैनर है विच सेलिब्रेट्स द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटिमेंट, सेंसिबिलिटी एंड सेंटिमेंटलिज्म। इसमें से अगर देखा जाए फनी बॉय जो है वो एक कमिंग ऑफ एज नॉवल था। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में और बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, सो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ अगर इसकी डिमांड होगी तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म T.S. Eliot attacked J. Middleton Marine similar critics for being devotees of what he called A. The inner voice। इसका आंसर A है। नेक्स्ट है हमारा 32। इन पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिक्स आर मैंशनड बाय जॉर्ज ऑरवेल एज बैड हैबिट्स ऑफ इंग्लिश यूज। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज ये आपने क्रिटिसिज्म में पढ़ा ही होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, प्रीटेंशियस डिक्शन। सो सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर है, इसके अकॉर्डिंग बी हमारा सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट वाज पुअर यूरिक इन हैमलेट। हैमलेट में पुअर यूरिक कौन था? जेस्टर। सी आंसर इज करेक्ट। Question number 34. Which two of the following confirm to Northrop Frye's typology of literature? First है Mythos of Spring comedy, Mythos of Summer satire, Mythos of Autumn tragedy, Mythos of Winter romance. So इसका correct answer Mythos of Autumn and Mythos of Spring comedy and tragedy. So ये इसका correct answer है B इसका सही answer होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। with which of these is Gugiwa Thiong generally associated? Decolonizing the body, decolonizing the mind, decolonizing the polity, decolonizing the state. So the correct answer is decolonizing the mind. उनका कहना ये था कि ब्रिटिशर्स के जो उनका कहना ये था कि जो ब्रिटिश रूल है उससे बहुत सारी कंट्रीज़ आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन अभी उन्हें अपने माइंड में ये एक्सेप्ट करना होगा बहुत सारी चीज़ें, मतलब माइंड से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। सो हमें माइंड से भी आज़ाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी से उन्होंने अपनी एक टर्म दी थी जिसमें ये सही आंसर है डिकोलोनाइजिंग द माइंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। अब ये जो 4 वर्क्स हैं हमें इसका पब्लिकेशन बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो इन सब में से जो सबसे पहले आई थी वो थी द गोल्डन नोटबुक, एंड उसके बाद आई थी द ब्लूएस्ट आई। सो 3, 4 एंड उसके बाद आई थी द कलर पर्पल। ये द गोल्डन नोटबुक आई थी 1962 में, द ब्लूएस्ट आई थी 1970 में, द कलर पर्पल पब्लिश्ड हुई थी 1982 में एंड द हैंडमेड्स टेल पब्लिश्ड हुई थी 1985 में। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हमारा आंसर होगा सी, हमारा सही आंसर बनेगा 3, 4, 2, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज पोएट रॉट अ पोएम दैट सर्व्ड टू इंस्पायर W.B. Yeats टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। सो व्हेन यू आर ओल्ड लिखी थी W.B. Yeats ने, और जिससे वो इंस्पायर हुए थे वो था पियर डी रॉन्सर्ट। ये एक 16th सेंचुरी फ्रेंच पोएट थे जिससे W.B. Yeats इंस्पायर हुए थे उनके एक वर्क से। सो इसलिए उन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी व्हेन यू आर ओल्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम बॉलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी बिगिनिंग 1969 which carried essays on amusement park, comics and detective films? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जर्नल ऑफ पॉपुलर कल्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज एरियाज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द ऑर्डर इन विच दे इन्वॉल्व इन हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सेइंग अ वर्ड। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस जाएगा वो है 4, 1, 2, 3। सबसे पहले पोस्टीरियर स्पीच कॉर्टेक्स, आर्क्यूएट फेसिकुलस, एंड उसके बाद एंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स एंड लास्ट में मोटर कॉर्टेक्स। सो इसका जो करेक्ट हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो है 4, 1, 2, 3। डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ दीज डज मीनाक्षी मुखर्जी प्रपोज एज द पॉसिबल टारगेट रीडरशिप ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश नॉवल। सो 2 तरह की रीडरशिप से वो एसोसिएट करती थी, ब्रिटिश रीडरशिप एंड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया। सो 3rd and 4th
सही ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर यूज इन लिटरेरी थ्योरी। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर नहीं मिल सका है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सो इसका करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले आएगा नेग्रीट्यूड, देन जेनेसिस एंड पैराटेक्स्ट, फिर स्क्रिप्टेबल। सो द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी 3, 1, 4, 2। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू of the working group set by the University Grants Commission in 1978 to study the medium of instruction in higher education। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। It argued that English as a highly developed language was best suited for India's industrial and scientific progress. It asserted that English had the potential to further polarize an already divided nation along socio-economic and intellectual fault lines. Option C is it observed that English need not be displaced as the medium of instruction, although regional language were quite ready to take over its functions. And D option it recommend a quicker switchover of the medium of instruction from English to Indian languages. सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए। इसमें क्या है, इट आर्ग्यूड दैट इंग्लिश एज अ हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज वॉज बेस्ट सूटेड फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पोइट को हमें उनकी लैंग्वेज से मैच करना है, लाइक कौन से पोइट किस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। तो चार्ल्स बॉडलेयर है, हेनरिच हीन है, सिल्विया पाथ एंड जोस मार्टी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी इनके जो नाम हैं उनसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि नाम किस लैंग्वेज से बिलोंग कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें मैच करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे सिल्विया पाथ वो एक इंग्लिश पोइट थी एंड हेनरिक हीन ये एक जर्मन पोइट थे और चार्ल्स बॉडलेयर ये एक फ्रेंच पोइट थे एंड जोस मार्टी स्पेनिश थी। हमें मैचिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन अपने आप ही एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं ऑलरेडी। सो क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश डिसग्रामेटिकली एज 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हम आंसर अगर देखेंगे, मैन एंड सुपरमैन ये GB शॉ ने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1903 में। देन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये 1907 में पब्लिश हुआ था। देन लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑब्सर्न ये 1956 में पब्लिश हुआ था। एंड सर्जेंट मुस्क्रेव्स डांस ये 1959 में पब्लिश हुआ था जॉन आर्टन के द्वारा। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आ रहा है 4, 2, 3, 1। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम द यक्षगाना ट्रेडिशन इन हिज थिएटर। यहाँ पे हमें 4 इंडियन ड्रामेटिस्ट के नाम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि यक्षगाना ट्रेडिशन किस ड्रामेटिस्ट के ड्रामे में देखने को मिलता है। तो यक्षगाना क्या है, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है जो कि कर्नाटक में पॉपुलर है ज़्यादा, और ये एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डांस, म्यूज़िक, सॉन्ग, स्कॉलरली डायलॉग्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म होती है ये एंड बहुत ही मज़ा आता है ऐसे और कुछ प्ले देखकर जिसमें डांस है, म्यूज़िक है, सॉन्ग है, डायलॉग्स हैं एंड कॉस्ट्यूम्स है कलरफुल। सो ये हमें देखने को मिलता था गिरीश कर्नर के प्लेज में। सी आंसर वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, इन एन अपोलॉजी ऑफ पोइट्री सिडनी डिस्कसेस द डिडैक्टिक फंक्शन ऑफ पोइट्री बाय कंपेयरिंग इट टू फिलोसफी एंड। सो यहाँ पे एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री में सिडनी ने पोइट्री को कंपेयर किया था फिलोसफी से और एंड हिस्ट्री से। सिडनी का कहना ये है कि जो पोएम है, पोइट्री है, ये सबसे पहले आई है, लाइक हिस्ट्री से भी पहले आई है
और फिलॉसफी से भी पहले आई है। जो भी ग्रीक राइटर्स थे, जिन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया था, उन्होंने एक पोइटिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया था। और जब हिस्ट्री लिखी जाती थी, हिस्ट्री पहले की बातें लिखी जाती थी, तो ये हिस्ट्री से पहले लिखी गई है पोएम्स एंड पोइट्री। सो फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी लिखी गई है उससे भी पहले पोइट्री लिखी जा चुकी है। सो पोइट्री को कंपेयर किया था उन्होंने फिलॉसफी एंड हिस्ट्री से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। हु इज़ द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बीथोवन वॉज 1/16 ब्लैक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नदीन गॉर्डिमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49। अरेंज द फॉलोइंग एसेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। हमें यहाँ पे एसेज दिए गए हैं क्रिटिसिज्म के और हमें इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन आई थी 1846 में, देन द आर्ट ऑफ फिक्शन आई थी 1884 में, मॉडर्न फिक्शन आई थी 1921 में एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म आया था 1923 में। तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो है 2, 3, 4, 1। सो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड पैराफ्रेज एज अ हेरेसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिंट ब्रूक्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इनका ये कहना था कि पोइट्री एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को पैराफ्रेज कर सकते हैं लेकिन पोएम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पोइट्री फॉर्म है, जो इसका जॉयस थिंग है पोएम में जो चीज़ होती है, अगर हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगी। सो पोइट्री का कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा इससे। सो ये मैंने क्वेश्चन 50 तक आपको सॉल्व करके दिखा दिया है पेपर एंड क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं, सो ये मैं 2 पार्ट में वीडियोस बना रही हूँ। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।